So simply, yesterday we have started the first lesson of flamingo, and the name of the first lesson is the last lesson. So simply, yesterday we have discussed background, title, character, and one paragraph also. And if we talk about the background, so yesterday we have discussed that this story is set at the time of 1870-71. yes, 1870-71. There was a great War and between Persian in this war France controlled over to Spain and Second Empire. and imposed Imposed German language. So this chapter describes that how this order has affected and because of that order the French teacher was giving it the last last French lesson. That's why the name of the lesson is the lesson. there are how many characters? First one is MML. second one is who is MML? MML was a French teacher. He was very strict and disciplined. He always kept. And second one is he was a he always wanted to bunk the class, है ना. तो ये सब हम लोगों ने कल किया था. उसके बाद जो एक पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा था उसमें ये था that one morning a poor student whose name was Franz got up and he was in great confusion whether he should go to school or not. Actually, he didn't want to go to school, and the reason was that his teacher Hamel had given him to learn the rules of participle, and he didn't know even a single word. So at first, he decided that he would not go to school. In place of going to school, he would enjoy the day out of the door, because the day was very bright, very warm, very pleasant, and he decided that he would enjoy the day by hearing the chirping of birds and by enjoying the drilling of Persian soldiers in the open field back to the sawmill, because these things were much more tempting, attracting than the rules of. But he had a strength that resisted all these ideas, and ultimately he decided to go to school. But in this confusion he got late. That's why he very hurriedly moved towards the school. इसीलिए बहुत जल्दी से स्कूल की तरफ निकला था. तो यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था. इसके बाद सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है When I passed the town hall. From here we have to start. Got it? ऑनलाइनर मिल गया बेटा सबको? ओके बेटा, ओके. तो अब कहते हैं When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. So he got late. लेट तो हो ही गया था. Very hurriedly he moved towards the school. क्योंकि जब इस कंफ्यूजन में होते हैं ना, स्कूल जाए ना जाए तो लेट होना फिक्स रहता है. क्योंकि एक बार बात की दोस्तों से, उसने कहा दो ने कहा चल रहे हैं तो पेस्ट लगा लिया. फिर दो ने कहा नहीं चल रहे हैं, पेस्ट लगा ही बैठे हैं, है ना. फिर एकदम से चलो चलते, तो फिर करने लगे स्पीड में, अरे रहने दो. फिर वही स्लो हो गया. फिर नहाने से हर प्रकार ऐसे ही होता, तो वो भी लेट हो गया था. लेकिन जब फिर अल्टीमेटली मूड बना ही लेते जाना है, फिर लेट हो ही जाते, फिर जल्दी जल्दी भाग रहे होते. तो यही उसने किया. वेरी हरीडली ही मूव टुवर्ड्स द स्कूल. बहुत जल्दी से स्कूल की तरफ निकला. बट व्हेन ही केम टू द टाउन हॉल, जैसे सारे शहरों में टाउन हॉल होता है, ऐसे हमारे यहाँ टाउन हॉल है. तो वहाँ पे भी क्या हुआ, व्हेन ही केम टू द टाउन हॉल, जब वो अपने टाउन हॉल पर आया ना, सो ही सॉ अ ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड से मतलब नोटिस बोर्ड, या जो नोटिस बोर्ड था टाउन हॉल पर, उसने देखा दैट देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ दैट बुलेटिन बोर्ड. उस नोटिस बोर्ड के सामने, उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ उसे दिखाई दे रही थी. And as soon as he saw the crowd, he understood there must be some bad news. जैसे ही उसने उस भीड़ को देखा, वो समझ गया कोई ना कोई बुरी खबर होगी. क्यों समझ गया? जैसे सपोज करिए आपका ही कोई फ्रेंड है ना, वो जब भी आपके पास आता हो कोई ना कोई बुरी खबर ही लाता हो. जब भी
तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा जैसे ही आप उसे अपनी तरफ आते हुए देखेंगे आपका रिएक्शन ये होगा, अरे यार अब पता नहीं क्या बवाल लेके आया, यही तो होगा, क्योंकि आप देख के समझने लगेंगे। तो वो देख के क्यों समझ गया कुछ बुरी खबर होगी? बिकॉज फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। तो जैसे ही उसने उस क्राउड को देखा, क्राउड को देख के ही उस क्या समझ गया कि कैसी न्यूज होगी। और क्यों समझ गया? बिकॉज सिंस लास्ट 2 years ही वॉज गेटिंग ऑल द बैड न्यूज फ्रॉम दैट बुलेटिन बोर्ड। क्योंकि पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबर थी वो कहाँ से मिल रही थी? उसी बुलेटिन बोर्ड, उसी नोटिस बोर्ड से मिल रही थी। तो इसीलिए उसने सोचा कि आज कौन सी खबर हो सकती है, और कौन कौन सी? वेदर इट वॉज द न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल, जब युद्ध हारे थे उसकी भी न्यूज कहाँ से मिली थी? उसी नोटिस बोर्ड से, बुलेटिन बोर्ड से मिली थी। द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, या जब भी कोई ड्राफ्ट आता था, कोई लेटर आता था, या कोई कमांडिंग ऑफिसर कोई नई कमांड, नया ऑर्डर इशू करते थे, तो वो सारी चीज़ें उसी से मिलती थी। सो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। कहता विदाउट स्टॉपिंग, देयर मैं रुका नहीं, विदाउट स्टॉपिंग आई थॉट, बिना रुके हुए मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज कौन सी बात हो सकती, आज कौन सी बुरी खबर हो सकती। तो व्हेन आई केम आउट फ्रॉम द स्कूल, जब वो घर से बाहर निकला, सो वेयर ही केम, कहाँ आया? टाउन हॉल। व्हाट डिड ही सॉ देयर? अ ग्रेट क्राउड। एंड एज सून एज ही सॉ द क्राउड ही अंडरस्टूड देयर मस्ट बी, बिकॉज सिंस लास्ट 2 years ही वॉज गेटिंग ऑल द बैड न्यूज फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से सारी बैड न्यूज वहीं से मिल रही थी। और ऑनलाइन और शांत मत बैठा करो, आप लोग भी ऑन करके जब मैं पूछता हूँ, सो यू कैन बी पार्टिसिपेट, नहीं तो फिर बैठे बैठे तो सो जाएंगे। ओके ओके। तो देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। तो कहता मैंने टाउन हॉल पे क्राउड तो देख ही लिया, नाउ आई हरीड बाई एज फास्ट एज मीन्स आई पास फ्रॉम देयर एज क्विकली एज, जितनी तेजी से मैं निकल सकता था उतनी तेजी से मैं वहाँ से निकला। बट द ब्लैक स्मिथ वॉचर, बट इन फ्रंट ऑफ दैट बुलेटिन बोर्ड देयर वॉज अ ब्लैक स्मिथ ऑल्सो। वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार और भी था। एंड द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ इज, क्या नाम है? वॉचर। यस, वॉचर नाम का एक ब्लैक स्मिथ वहाँ पर खड़ा हुआ था, who was there with his apprentice। तो कहता as soon as I passed in front of that bulletin board very quickly, जैसे मैं बहुत ही तेजी से उस बुलेटिन बोर्ड के सामने से निकला, तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने there was a watcher who black smith, और अकेला नहीं था, he was there along with his apprentice। किसके साथ था वहाँ पर? अपने apprentice के साथ था। यू नो द मीनिंग ऑफ अप्रेंटिस, किसको बोलते हैं? अप्रेंटिस, हाँ चेला क्या? ट्रेनिंग, जिसको ट्रेनिंग देते, पपिल, शिष्य, चेला, है ना। तो ब्लैक वॉचर नाम का एक ब्लैक स्मिथ वहाँ पर अपने शिष्य चेले के साथ खड़ा हुआ था, और क्या कर रहा था? ही वॉज ऑल्सो रीडिंग द बुलेटिन, वो भी उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़, यस वो भी बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, तो जैसे ही मैं निकला उसने कहा हेलो लिसन, उसने मुझे पीछे से बुलाया, और बुला के क्या कहा? डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। क्या? डोंट गो सो फास्ट बब, बब से मतलब हाँ बॉय, जैसे बोलते बॉय व्हाई आर यू गोइंग सो फास्ट, इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? There's plenty of time in your school, अभी तो आपके स्कूल में बहुत टाइम है, आराम से जाओ, इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्या उसके पास टाइम था? वो स्कूल के लिए जल्दी जा रहा था या लेट था। तो फिर उसने ये क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी आप ही लोग लेट आते तो टीचर क्या कहता है? इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ आराम से आते हैं। टीचर क्या कर रहा होता है? मेकिंग फन ऑफ यू, मजाक उड़ाया जाता है ना। तो यही था, वो समझ गया। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, सो ही सेड दैट आई अंडरस्टूड दैट ब्लैक स्मिथ वॉचर वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैं समझ गया कि मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो। एंड रीच्ड एन एमएल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ एंड विदाउट स्टॉपिंग देयर, सीधे आके कहाँ सांस ली?
इन द लिटिल गार्डन ऑफ एमएमएल, स्कूल के बाहर एमएमएल ने छोटा सा जो गार्डन लगा रखा था ना, सीधा वहाँ आके रुका, वहाँ आके सांस ली। सीधा मैं रुका नहीं, बहुत तेजी से मैं वहाँ चला आया। अब कहता है यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बजर। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बजर। बजर से मतलब या नॉइज। जब तक क्लास सबसे ज़्यादा नॉइजी कब होता है? हाँ, जब असेंबली के बाद बच्चे क्लास में आ रहे होते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम टीचर्स नॉट देयर, टीचर होता नहीं। बच्चे आ रहे, कोई बैग इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, कोई काय कहते आप हमारे संग बैठो इन बंदेल कंडी वाला दिया है ना, समझ में लगे होते, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते है ना। हाँ, कुछ करे तुमने हमारा बैग कैसे हटा दिया। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज। तो वही ये कह रहा है यूजुअली मीन्स मोस्ट ऑफ द डेज व्हेन द क्लास स्टार्टेड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज। डेली जब क्लास शुरू होता था तो बहुत शोर होता था, और इतना होता था विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। Most of the days when the class started there was so much noise that this noise could be heard outside of the street. इतना शोर होता था बाहर गली में तक सुनाई देता था। शोर अब होता कैसे था? The opening and closing of desk. सपोज करिए सबको डेस्क ड्रॉअर मिल जाए, फिर तो टीचर आधा तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। अरे सर पेन निकाल रहे थे यही तो होगा बहाने बना के। एट द सेम टाइम सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर ओपनिंग इट एट द सेम ऑफ सम क्लोजिंग। तो पहली आवाज़ होती थी खोलना और बंद करना जो डेस्क ड्रॉअर थी उसका। दूसरा, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। जैसे नहीं सर ने याद करने को दिया, घर पे थोड़ा ना याद रहता कि याद करने को ही मिला है। वो याद जब पीरियड स्कूल में नहीं, जब पीरियड आ जाता है तभी याद आता। और तो याद फिर लगे होते जल्दी जल्दी है ना, फिर जल्दी जल्दी सब पढ़ रहे होते। तो दूसरा ये पहली आवाज़ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क ड्रॉअर। डेस्क ड्रॉअर के खोलने की बंद करने की आवाज़ आती थी। दूसरी आवाज़ थी लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन मतलब यूनियन, साथ में, क्योंकि सबको याद करने को मिला था ना, तो सब अपने अपने लेसन्स रिपीट कर रहे होते थे। वो भी कैसे? वेरी लाउड, तेज। और तेज क्यों थे? विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब क्लास में शोर बहुत हो रहा है, कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, तो कान बंद। और जब कान बंद कर लेते तो हमारी आवाज़ हमें कैसी लगती है? बहुत स्लो लगती है। तो क्या करते हैं हम? और तेज बोलने लगते हैं, है ना। तो अपने अपने कान बंद करके सब एक साथ अपना अपना जो चैप्टर था वो सब याद कर रहे होते थे। तो दूसरी आवाज़ ये आती थी इसकी। और तीसरा, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और तीसरी, अब टीचर भी अपना डंडा लिए टेबल पर टक टक टक, है ना। तो ये तीनों जो आवाज़ें थी सिंक्रोनाइजेशन में, ये इतनी आवाज़ बनाती थी कि आवाज़ कहाँ सुनाई देती थी? बाहर गली में सुनाई देती। तो वही, हाँ, वो सिंपली यही कह रहा दैट मोस्ट ऑफ द डेज व्हेन द स्कूल स्टार्टेड देयर वाज अ लॉट ऑफ यस नॉइज। बहुत शोर होता था। एंड द नॉइज वॉज सो मच दैट इट कुड बी इजिली हर्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। बाहर गली में सुनाई देता था। अब शोर होता कैसे था? पहला ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यस, ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ डेस्क। दूसरा, यस, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन बाय कीपिंग देयर ईयर्स शट। और तीसरा, टीचर्स टीचर्स रैपिंग द रूलर ऑन द टेबल। हाँ, तो ये तीनों आवाज़ें मिलके इतनी होती थी कि बाहर गली तक सुनाई देता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल मतलब, बट नाउ मीन्स बट ऑन दैट डे इट वॉज ऑल्सो स्टिल, इट वॉज ऑल्सो साइलेंट। डेली बहुत शोर होता था, आज बिल्कुल शांति थी। पिन ड्रॉप साइलेंस, या बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस था वहाँ पे। और वो ये कह रहा है, बट आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। द आई हैड काउंटेड ऑन, व्हाट डू यू मीन बाई काउंट ऑन? काउंट का मतलब समझते हो?
डिपेंड नहीं, डिपेंड। काउंट का मतलब डिपेंड, कमोशन का मतलब एटमॉस्फियर। जैसे मान लो क्लास में बहुत शोर शराबा हो रहा होता है, कब कौन आ गया कब कौन चला गया पता चलता है? बिल्कुल शांति हो। अब वो लेट था, अब उसे क्लास शांत चाहिए था या शोर शराबा चाहिए था? तो यही कह रहा है, आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द एटमॉस्फियर ऑफ द क्लास जस्ट टू गेट इन विदाउट बीइंग सीन। कोई जान भी ना पाए और मैं क्लास में जाके बैठ भी जाऊं, इसके लिए मैं उस क्लासरूम के शोर शराबे वाले एटमॉस्फियर पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन जिस दिन जो चाहिए होता है उस दिन वो होता कहाँ है? जिस दिन शांति चाहिए होगी उस दिन शोर शराबा होगा, जिस दिन शोर शराबा चाहिए उस दिन शांति होगी, उल्टा ही होता है। तो कहता मैं पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन उस दिन क्या था? बट दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट ऑन दैट डे the atmosphere of the class was just like Sunday morning. Sunday मतलब जैसे संडे में क्या, जब मिस वर्किंग डे नहीं होता है तो स्कूल में क्या होता है? बिल्कुल शांति, कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग बिल्कुल सन्नाटा। तो यही कहता, बोले आज तो लग ही नहीं रहा था कि स्कूल चल रहा होगा, आज तो लगे संडे की मॉर्निंग है, कोई है ही नहीं स्कूल में, इतनी शांति थी, कंप्लीट साइलेंस। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। अब जब आप लेट हो जाते हैं, है ना, आप बहुत लेट आए, तो फिर अगर कोई, जब आप लेट हो जाते हैं ना, तो फिर आप उस टीचर को देखते हैं जो लेट कमर्स को पनिश करेगा, उससे बचने की कोशिश करते हैं, है ना, इधर उधर से भागेंगे या फिर क्लास में जाके झांक के देखेंगे अब क्या हो रहा है। बेटा आपको कॉल आ गई थी इसलिए नहीं आ रहा था, अब आ रही है, अब आ रही है बेटा। तो लेट तो था ही वॉज फीलिंग स्केयर, डर रहा था, तो सीधा क्लास में नहीं गया। एट फर्स्ट ही पीप्ड इन थ्रू द विंडो। कहता मैंने खिड़की से झांक के देखा कि क्लास में हो क्या रहा है, इतनी शांति क्यों है। कहता व्हेन आई पीप्ड इन थ्रू द विंडो, जब मैंने खिड़की से झांक के अंदर देखा, आई फाउंड दैट माई क्लासमेट्स वर ऑलरेडी ऑन देयर सीट्स, कि मेरे जो क्लासमेट्स थे वो सब अपनी अपनी सीट पर पहले ही से बैठे हुए थे। एंड एम एमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, एंड आई सॉ दैट माई टीचर एम एमिल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, हाथ में डंडा लिए गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे। तो जैसे ही गुच्छा देखा मैंने तो मैं समझ गया दैट टुडे आई वुड गेट नाइसली, हाँ आज तो मिलने ही वाला। बार बार फोन काट रहा हूँ फिर भी। तो कहता मैंने देखा कि जो हमारे टीचर थे वो स्टिक को लिए हुए बार बार इधर उधर टहल रहे थे, स्टूडेंट सारे अपने अपने सीट्स पर बैठे हुए थे। अब आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। भाई मेन गेट है, मेन गेट के बाहर से लौट जाओ तो लौट जाओ, अंदर आ गए फिर तो अब क्लास में आना ही है ना। तो यही कहता है नाउ आई हैड टू ओपन द डोर। और हैड टू कब लगाते हैं बेटा? कंपल्सन इन पास, मुझे करना पड़ा। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने आना पड़ा, क्योंकि अब क्या कर सकता था, अंदर तो था ही। तो मैंने मजबूरी में दरवाज़ा खोला, सबके सामने आया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। कहता यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग दैट हाउ मच आई एम ब्लस्ड। ब्लस्ड है मतलब फीलिंग अशेम्ड, लेकिन आजकल नहीं आती। आजकल लेट कमर्स बड़े खुश होते हैं, नहीं आती नहीं है। क्लास से बाहर कर दो तो पहले लगता था जैसे काला पानी की सजा हो गई, कोई देख ना ले, मुँह छिपाते थे। अब तो और चौड़ा करके खड़े हो गए, दांत निकाल रहे होते, है ना। अब फर्क ही नहीं पड़ता है, उन्हें तो कुछ तो जानबूझ के बाहर निकालो, कौन पड़े आराम से, टेंशन बाहर। तो कहता आप एक स्टूडेंट है, आप समझ सकते हैं मुझे कितनी शर्म आ रही होगी, इन हाउ मच आई फ्राइटेंड, और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा। लेकिन ये टीचर पर डिपेंड भी करता है कौन टीचर है। सीधा टीचर है तो आप हो जाएगा, बहुत टेढ़ा है तो फिर लगता है क्लास में चुपचाप बैठो, बाहर निकाले तो कहो और
तो यही था, वो कह रहा अब हम बहुत डरे हुए थे, बहुत शर्म आ रही थी, और आप समझ सकते तो मैं बहुत डरते हुए शर्माते हुए मैं क्लास में आया, बट नथिंग हैपेंड, हुआ कुछ नहीं। कभी कभी नहीं, जैसे आपने घर में कोई ऐसा कांड कर दिया है कि लग रहा है अब तो चलना ही चलना है, अब तो घर पे पिटाई होनी ही होनी है, और घर में कोई कुछ ना कहे तब भी आश्चर्य होता आज क्या हो गया, आज किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं, है ना। तो वो तो ये सोच के आता दैट आई वुड बी स्कोल्डेड, आज तो डांट पड़नी पड़नी, लेकिन यहाँ नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, कह रहा है एम हैमिल ने मुझे देखा और बहुत ही प्यार से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट, अरे लिटिल फ्रेंड जस्ट गो एंड टेक योर सीट, जाओ जाओ जल्दी जाके बैठो, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जाओ जाके बैठ जाओ जल्दी से। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन, जल्दी से गया, उछल के अपनी बेंच पर बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frills and then black silk cap. नहीं होता कभी कभी आप क्या हुआ, सुबह से आप घर से निकले, पूरे दिन दोस्तों के साथ मस्ती की, दोस्तों के साथ जब मस्ती करते तब थोड़ा ना याद आता घर भी जाना है, घर पे क्या कहेंगे, घर जाने के बाद जब भी आती जब घर चल देते हैं, फिर इधर जनरेटर शुरू होता, अब घर क्या कहेंगे, अब तो बहुत लेट हो गई, फिर आप ये सोच के आते हैं कि अब तो घर पे डांट पढ़नी, आप घर आए किसी ने हाँ पड़ेगी, डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, घर पे आए किसी ने कुछ नहीं कहा, तो लगता रहे यार इमीडिएट। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, घर पहुंचते ही बुक्स दिखती हैं सीधी बिल्कुल सीधे बन के बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, दूसरे टॉपिक से पढ़ना तो 1-2 घंटे आप चुपचाप बैठ के पढ़ाई करती हो। अगर उस 1-2 घंटे में आपका छोटा भाई बहन मार के भी चला जाए ना आपको, तो आप वो भी बर्दाश्त करते हैं कि अभी शांत रहो, क्योंकि डर ये होता है ना कि अभी डांट नहीं पड़ी, शायद अब पड़ जाए, अब पड़ जाए, अब पड़ जाए, इस वजह से आप चुपचाप बर्दाश्त करते हैं। जैसे 2 घंटे हुए, आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, तो अभी तक आप ऐसे बैठे थे ना, 2 घंटे बाद ऐसे Then you will show your true color इधर क्योंकि 2 घंटे पढ़ाई कर ली, अब नहीं होना कुछ भी, फिर यही लगता है ना। तो यही उसके साथ हुआ, वो आके बैठ तो गया, लेकिन डर था कहीं अब डांट न, तो आके बैठ तो गया, बट ही वाज स्केयर्ड कि अब डांट पड़ जाएगी, अब डांट आ रही है बेटा, आ रही है, आ रही है तो कह रहा है कि क्या हुआ, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फ्राइट, मींस पहले तो दिल में डर था, तो मैं बैठ के चुपचाप क्या कर रहा था, उस डर को काबू में कर रहा था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, है ना, करता रहा। एंड व्हेन आई हैव कंट्रोल्ड ओवर माय फियर, जब मैंने अपने डर के ऊपर काबू पा लिया, देन आई लुक्ड अप, और तब मैंने ऊपर देखा, एंड एज सून एज आई लुक्ड अप आई वाज सरप्राइज्ड, ऊपर देख के ही मैं सरप्राइज हो गया। क्यों? मैंने देखा माय टीचर एम हैमिल वाज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, सर ने तो आज बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड से मतलब डिजाइनर शर्ट, जो शर्ट थी डिजाइनर शर्ट पहने हुए था। एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटा सा एक ब्लैक कलर का सिल्क का कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। और ये ऐसी यूनिफॉर्म थी जो पूरी, जिसमें क्या निकला हुआ था, एम्ब्रॉयडरी डिजाइन निकली हुई थी, सब अच्छी डिजाइन निकली हुई थी, वो पहने हुए थे। और सरप्राइज इसलिए हुआ दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, बिकॉज दिस वॉज द यूनिफॉर्म विच वॉज वॉर्न बाय हिम ओनली ऑन 2 ओकेजन्स, क्योंकि ये ड्रेस वो केवल 2 ओकेजन्स पर पहनते थे, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पर पहनते थे या फिर इंस्पेक्शन पे पहनते थे। लेकिन ना तो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था और ना ही इंस्पेक्शन था, तो सर ने आज ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है, ये देख के मैं सरप्राइज हुआ। इंस्पेक्शन मतलब जैसे कोई ऑफिसर विजिट करने आया, इंस्पेक्ट करने आया था, जैसे पुराने जोक सुने होंगे ना, कि स्कूल चल रहा था और ऑफिसर आए, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, लाइक दैट, है ना, तो इंस्पेक्शन की ऑफिसर्स आते हैं। इन बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और इसके अलावा द सेकेंड थिंग दैट सरप्राइजिंग, द एटमॉस्फियर ऑफ द क्लास, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, बहुत ही अजीब, जैसे नहीं क्लास में बिल्कुल शांति हो तो वो भी कैसा लगता है, अजीब लगता है ना, तो यही था, बिल्कुल शांति, एंड सोलमन बहुत ही सीरियस, सब बहुत ही सीरियस बैठे हुए थे, बहुत ही अजीब लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट,
was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. जैसे नहीं आप अपने स्कूल पहुंचे, आपने देखा आपके टीचर ने बिल्कुल नए कपड़े पहने हुए बहुत अच्छे, तो आप कुछ ना कुछ स्पेकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले तो आके हैप्पी बर्थडे सर सबसे पहले तो यही हो जाएगा शुरू में, या कुछ ना कुछ सर पार्टी में गए होंगे, कुछ ना कुछ स्पेकुलेट कर लेंगे। क्लास बिल्कुल शांत है, कोई भी नहीं बोल रहा, उसका भी स्पेकुलेट कर लेंगे। क्या सब समझ जाएंगे? किसी के ऊपर आज झुमका गिरा है थोड़ा बहुत नहीं, बहुत करके कोई पिटा, इसीलिए अब सब शांत बैठे, यही तो। लेकिन सपोज करिए आपके क्लास में आपके दादाजी के एज के लोग बैठे हैं, आप क्या सोच पाएंगे? यहाँ आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे क्यों बैठे हुए। तो ये कहता, आई वॉज सरप्राइज बाय द ड्रेसिंग सेंस ऑफ एमएमए, आई वॉज सरप्राइज बाय द प्रेजेंस बाय द एटमोसफियर ऑफ द क्लास, बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वो था द प्रेजेंस ऑफ ओल्ड विलेजर्स ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। बोले पीछे की सीट्स जो हमेशा खाली होती थी आज खाली नहीं थी, वहाँ विलेजर्स बैठे हुए थे, बूढ़े लोग बैठे थे, वो भी कैसे, जस्ट लाइक क्वाइट आवरसेल्फ, जैसे हम बच्चे बैठते हैं ना वैसे स्टूडेंट्स के जैसे वो लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर उसे आश्चर्य हुआ। और कौन कौन बैठा था? ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, एक बूढ़ा हाउसर बैठा हुआ था, एक तिकोना हेड लगाए हुए था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एक्स फॉर्मर मतलब एक्स है ना, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर बैठा था। फॉर्मर मेयर, एक्स मेयर, चेयरमैन बैठा था, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके बगल में और भी कुछ लोग बैठे थे। एवरीवन लुक्ड सैड, वो कहता जितने भी लोग बैठे थे सब कैसे दिख रहे थे? दे ऑल वर वेरी सैड, वेरी अपसेट, सब बहुत दुखी और परेशान थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वो क्या लेकर आया था? एक पुराना प्राइमर लेकर आया था। प्राइमर से मतलब क्या होता? प्राइमर क्यों पुताई करने आया था क्या? प्राइमर से मतलब है द बुक ऑफ प्राइमरी लेवल, है ना। तो जो ओल्ड हाउसर था वो प्राइमरी लेवल की एक पुरानी बुक लेकर आया हुआ था। एंड थम्बल्ड एट द एजेड, हाउसर नाम है वहाँ पर। तो जो बूढ़ा हाउसर था, जो किराए पर घर देते हैं ना उनको क्या देते हैं? हाउसर। तो वो जो बुक लेकर आया था थम्बल्ड एट द एजेज, जैसी बुक नहीं पुरानी हो जाती है, देखो थम्बल्ड एट द एजेज ना, वो तो निकलने ही वाली है। तो ऐसी पुरानी प्राइमरी लेवल की बुक लिए था जो उसकी किनारी फटी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेज, उसने उस बुक को खोल के अपने घुटनों पर रखा हुआ था। एंड ग्रेट स्पेक्टिकल, ग्रेट स्पेक्टिकल से मतलब बुढ़ापे पर चश्मा देखा होगा ना, बड़ा फ्रेम, मोटा ग्लास है ना, तो मोटा सा बड़ा सा चश्मा उसके ऊपर रखा हुआ था। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा।